انسان کی فطرت ہے کہ وہ زندگی میں ایسے دنوں کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کی زندگی کا قیمتی اثاثہ بن جائیں، جو اس کے لیے خوشیاں لے کر آئیں، جو اس کے لیے معتبر بن جائیں۔ وہ دن کون سے ہوں، ہر ایک اس کا تعین اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے معاشرے کے افراد کی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک وسعت والے وقت کی قسم کھائی ہے جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور جب دن کا نور پھیلنے کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال ناشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، دونوں اوقات معتبر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذوالحجہ کے ان دنوں کو معتبر بنایا ہے۔ ہر وہ موقع، ہر وہ موسم اور وہ سارے دن جن کو انسان سیلیبریٹ کرتا ہے اس کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دنوں کو اہمیت دی ہے جو دن انسان کو انسان بناتے ہیں، جو دن انسان کو اس کی فطرت کے مطابق ڈال دیتے ہیں، جو دن انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف پیدا کر دیتے ہیں، جن دنوں کی وجہ سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قطرہ دریا سے مل جائے، یہی قطرے کی انتہا ہے، یہی قطرے کی منزل ہونی چاہیے۔ قطرہ دریا سے باہر ہو تو اپنا وجود کھو دیتا ہے، ایسے ہی انسان کا معاملہ ہے۔ انسان کی ذات تب قیمتی بنتی ہے جب وہ اپنے رب سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ تو یہ دن ایسے ہیں جو انسان کو رب سے ملا دیتے ہیں، رب سے قریب کر دیتے ہیں۔ وہ دن جو ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں، یہ تو یادوں کے دن ہیں، یہ تو انسان کا رشتہ ان ہستیوں سے ملانے کے دن ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ انسان ان دنوں میں یاد کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے گھرانے کے افراد کو، ان کے تعلق باللہ کو، ان کے گھرانے کو۔ 30 سے زائد آزمائشیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آئیں، ہر آزمائش پہلے سے زیادہ بڑی، لیکن آزمائش کی تو کیا ہی بات ہے۔ اس آزمائش کی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کر دینے کا حکم ملا۔ یہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے آخری دن کی بات ہے جس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس فعل کی یاد منائی جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہر عمل سے ایک ہی پکار آتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ تو اس پکار کے تذکرے کے دن ہے، اس صدا کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آج سے سینکڑوں برس پہلے دی تھی۔ آج بھی مکہ میں آنے والے قافلے انہی صداؤں کے ساتھ اسی آواز، اسی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس دھرتی میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی پکار کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا شرف قبولیت بخشا ہے۔ قرآن پاک اور سنت دونوں سے یہ ثابت ہے کہ ملت ابراہیمی کی اصل بنیاد قربانی تھی، اور یہی قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ زندگی کی اصل خصوصیت تھی، اور اسی امتحان اور آزمائش میں پورے اترنے کے سبب سے وہ اور ان کی اولاد ہر قسم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। और जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया तो उसने उन सबको पूरा कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, यकीनन मैं तुम्हें सब लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूं। और तज़किरा है इसी वाक़े का सूरा अस्साफ़ात की आयत नंबर 102 से 111 तक। फरमाया, जहानों के बादशाह ने, रब्बी हबली मिनस्सॉलिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम फलम्मा बलग माअहु अस्साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे रब, मुझे सॉलिहीन में से औलाद अता कर। फिर हमने उसे एक बुर्दबार लड़के की बशारत दी। फिर जब उसके साथ भाग दौड़ की उम्र को पहुंचा तो उसने कहा, ऐ मेरे छोटे बेटे, यकीनन मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर। उसने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है कर डालिए। राय पूछी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, आपकी क्या राय है? बेटे ने कहा, राय की बात नहीं, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है कर डालिए। सतजीदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्त अर्रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन। फिर जब दोनों मोती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल गिरा दिया और हमने उसे निदा दी कि ए इब्राहिम, यकीनन तूने ख्वाब सच कर दिखाया। यकीनन हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। यकीनन ये एक खुली हुई आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी उसके फिदिये में दी और हमने बाद में आने वालों में उसकी तारीफ छोड़ दी। सलाम है इब्राहिम पर। इसी तरह हम नेकी करने वालों को जजा देते हैं। यकीनन वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था। मुस्लिम अहमद में है, सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने नूरे नज़र को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ज़िबा करने के लिए ले चले तो शैतान उनके सामने आया, लेकिन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे आगे बढ़ गए। फिर सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ अब जमरे उक़बा के पास पहुंचे तो फिर शैतान सामने आया, लेकिन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। फिर जमरे वुस्ता के पास आया, फिर वहां 7 कंकरियां मारी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मनासिक अदा करने के लिए तशरीफ लाए तो जमरे उखरा के पास शैतान नजर आया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको 7 कंकरियां मारी, यहां तक कि वो जमीन में धंस गया। जमरतुल वुस्ता के करीब भी यही सूरत पेश आई और सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, शैतान को मारते रहो और अपने बाप सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलते रहो। यही वो बरकत है जिसको मुसलमान दिन में 5 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने याद करते हैं।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। या अल्लाह, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर बरकत नाजिल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम पर बरकत नाजिल की। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो हज की नीयत लेकर अपना माल, अपनी सलाहियतें, कुव्वतें, वक्त लेकर अपने रब के हुजूर पहुंच गए। जो लोग हज के लिए जाते हैं, उन जाने वालों को क्या कुछ मिलता है। तवाफ से दिल की बेचैनी को करार आता है। आंसुओं के साथ, आहों के साथ रब से फरियादें करने का, दुआएं मांगने का मौका मिलता है। जमजम का पानी पीकर ईमान को ताजा करने का मौका मिलता है। रब पर तवक्कुल की यादगार है जमजम। जो उस पानी को पीता है, रूहानी और जिस्मानी तौर पर शिफा हासिल करता है। अरफात जाएंगे, मिना में रातें गुजारेंगे, जमरात को कंकरियां मारेंगे। एक एक फेल ऐसा है, जाने वाला तो दामन भर ले, पीछे वाले क्या करें। जो जाने की ताकत न रखते हों, क्या उनके लिए भी कोई खैर है? क्या उनके लिए भी कोई नेकी का सामान मौजूद है? क्या उनके लिए भी मौके मुयस्सर हैं? हाँ, ये बरकत वाले दिन हैं, अशरा जुल्हिज्जा के दिन। इनके आमाल हाजियों से मिलते जुलते आमाल हैं। रब्बे रहमान की तरफ से अशरा जुल्हिज्जा अहले ईमान के लिए अजर सवाब हासिल करने का अजीम शान और सुनहरी मौका है कि इन दिनों की मामूली दर्जे की नेकी भी दूसरे दिनों की आला दर्जे की नेकियों से अफजल है। इसलिए अल्लाह वाले इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करके ज़ाद आखिरत जमा करने की शदीद कोशिश करते थे। जब अशरा जुल्हिज्जा दाखिल हो जाता तो सईद बिन जुबैर तहद्दे इस्तिताअत शदीद इबादत करते थे। कुरान और सुन्नत में इन 10 दिनों की फजीलत के बहुत से दलाइल हैं। सूरा अल फज्र में है, वल फज्र वल्लयालिन अश्र, कसम है फजर की और 10 रातों की। सैयदना इब्न अब्बास से मरवी है, वल्लयालिन अश्र से मुराद जुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इन दिनों की कसम खाना इनकी शान और अज़मत पर दलील है। इन 10 दिनों के साथ हज के महीनों का इख्तिताम होता है, ये बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मारूफ हैं। हाफिज इब्न रजब ने लिखा है, जुल्हिज्जा के 10 दिनों के फजाइल में एक बात यह भी है कि वो मालूम महीनों का आखिरी हिस्सा है और वो महीने हज के हैं, जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम हैं और वो शवाल, जुल्कादा और जुल्हिज्जा के 10 दिन हैं। सैयद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल फी अय्यामिल अश्री अफज़ल मिन्हा फी हाज़िही, इन दिनों के अमल से ज्यादा किसी दिन के अमल में फजीलत नहीं। लोगों ने पूछा, और जिहाद में भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलल जिहादु इल्ला रजुलन खरज युखातिरु बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजि बिशैइन। हाँ, जिहाद में भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल खतरे में डालकर निकला और वापस आया तो साथ कुछ भी ना लाया, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में कुर्बान कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों को अफजल अय्यामिद दुनिया करार दिया है। जुल्हिज्जा के दिन, बरकत वाले दिन, इन दिनों में एक दिन अरफा का भी है। सैयदना अनस बयान करते हैं कि अशरा जुल्हिज्जा के मुतालिक